آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ اتنے عرصے کے بعد میں نے آپ کو اسٹوڈیو میں بلایا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے جو اثرات ہیں وہ کہاں کہاں تک ہم متاثرین ہیں یا فیضیابی ہم نے کی ہے، ڈیپینڈنگ آن ہاؤ یو سی اٹ. اوکے، لیٹ می اسٹارٹ ود دس. میں پہلا جو کیس ریمائنڈ کروانا چاہوں گا وہ ہے سائفر کیس. بہت چلا، جب چلا تو ذرا سائفر کیس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیں. آپ بھی چپ ان کر سکتے ہیں بیچ میں تفصیلات، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ چلا کیسے، پروسیکیوشن نے کیا کیا وغیرہ وغیرہ. گو ہیڈ. دیکھیں، سائفر کیس کہنے کو تو سب سے اساس اور سب سے امپورٹنٹ کیس تھا، اور اس کے اوپر پورا بیانیہ بنایا تھا عمران بانی پی ٹی آئی نے کہ جناب یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، اور اس کے بعد گورنمنٹ کے بڑے دعوے تھے کہ ہمارے پاس اس کا پورا ایویڈنس ہے اور یہ کیس چلے گا تو یہ کہیں نہیں رہیں گے. لیکن ہم پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیس چلا، سزا ہوتی ہے اور ہائی کورٹ ٹھہر نہیں پاتی. اور اس لیے ٹھہر نہیں پاتی کہ جب ضمانت کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ گیا تو یہ بید کھلا کہ جس کے اوپر، جس سائفر کے ڈاکومنٹ کے اوپر پورا کیس بنایا جا رہا ہے، پراسیکیوشن کے پاس وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. پراسیکیوشن آپ کو سائفر سے لے کے ان سارے مقدمات میں ایک چیز کامن جو ملتی ہے، پراسیکیوشن کے فیلیئرز اور پراسیکیوشن کے بلنڈرز. جس طرح سے کیس کو بنایا جاتا ہے، جو عمومی پرسیپشن ہوتی ہے کیس کی کہ یہ اتنا بڑا کرائم ہو گیا ہے، جب آپ انویسٹیگیشن فائل پڑھتے ہیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کورٹ کو کہ بندے کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کابینہ نے باقاعدہ اس کو اوکے کیا تھا نا کیس کو، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلا. لیکن پروسیکیوشن کے پاس اگر وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ آتا تو پھر کورٹ یہ پوچھتے نا کہ یہ تو سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے تو تہاڈے کول کتھوں ہے؟ نہیں، واٹ از یور ٹیک؟ نہیں، وہ گورنمنٹ تھی اور کورٹ جو ہے وہ اس کو منگوا سکتی تھی اور پروسیکیوشن ریکویسٹ کر سکتی تھی کہ صرف کورٹ اپنے دیکھنے کے لیے کہ یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کے بعد سیل انویلپ میں بند کر کے واپس کر دیا جائے. سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس آیا، سپریم کورٹ میں بھی اور ٹرائل کورٹ میں بھی. اس میں جو ایک تاثر بظاہر ملا ہے سائفر کیس میں، بیانیہ تھا عمران خان کا جو بھی تھا، وہ بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو سائفر کیس میں جو لکھا ہوا ہے وہ اس بیانیے کے قریب قریب تھا. اس پرسیپشن یا اس جو ایک حقیقت تھی، اس کو چھپانے کے لیے حکومت وقت نے یا پروسیکیوشن نے وہ ڈاکومنٹ سامنے لایا ہی نہیں ہے. اور جب تک کہ وہ ڈاکومنٹ کورٹ نہ دیکھتی تو وہ پھر کیسے سمجھ سکتی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اندر کچھ ایسی چیز تھی. بالکل، اسی لیے میں تاثر بتا رہا ہوں. بار بار جب ہائی کورٹ، تاثر کہاں پہ آپ کی طرف ہے؟ یہ ساری مارکیٹ میں نہیں، آپ کا اپنا تاثر ہے. یہ سب میں کورٹ رپورٹر بتا رہا ہوں. میں کورٹ رپورٹر ایک ڈاکومنٹ جو ہے جس پہ پورا کیس بیس کرتا ہے، اس کو کورٹ آئی کے لیے کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو آپ دکھا سکتے ہیں. شہادت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ فائل کا حصہ آپ دکھا سکتے تھے. اور آخر میں پھر پروسیکیوشن کی تیاری بھی کر پکڑی، لیکن اس وقت تو ٹرائل ہو چکا تھا. اس میں ایک چیز تھی کہ ایک سیکیورٹی کنسرن تو اس میں تھے، اور حکومت کو جس وقت جا کر لگا اس وقت تک دیر ہو چکی تھی، اور حکومت نے پلان بھی کر لیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم اس کو پیش کر دیتے، اور کہا بھی تھا کہ ہم یہاں پر پیش کر دیتے ہیں. لیکن اس وقت تک جو ہے وہ بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ وہ اپیل کا جو فورم چل رہا تھا، اور اپیل میں میرے خیال میں ایویڈنس وہ نہیں آ سکتا تھا. ہوا یہ ہے کہ یہ ہم خود سے ہم میرے خیال میں نہیں کہہ سکتے کہ شاید وہ جو عمران خان نے باتیں کی تھیں شاید اس میں ہم نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ دیکھا نہیں ہے. جب تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی، اگرچہ وہ ایک اخبار میں چھپ چکا اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ مستند ہے یا نہیں ہے، لیکن جو میں نے پڑھا مجھے لگا کہ مستند ہی ہے. ویسے جب بھی کوئی کیس چلتا ہے تو اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ایویڈنس وہ دینا ضروری ہوتا ہے. ایک طرح کا اس کیس کا مین جو ایویڈنس وہ یہی تھا. تو شاید عمران خان کو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں سب سے جو بڑی سہولت ملی کہ وہ ایویڈنس سامنے حکومت کسی بھی وجہ سے، سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں لا سکے، اس کا انہیں فائدہ ہوا. میں آپ کو تھوڑا سا ایگزامپل دے دوں گا. عمران فاروق قتل کیس چل رہا تھا تو اس میں جب وکیل پیش ہوئے تو آ کر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا جی عمران فاروق تو چھپے ہوئے ہیں، ان کی ماضی کی آپ دیکھیں چیزیں تو وہ تو پہلے ریکارڈ ہے کہ وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کا تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو پھر استغاثہ کو خیال آیا کہ بھائی جائیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آئیں برطانیہ سے، پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کے آئیں. یعنی قتل ہوا بندہ جو ہے اس کو مقتول ثابت کرنے کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے تھا. وہ ڈاکومنٹ یہ جب ہائپ اتنی بنائی تو پھر ڈاکومنٹ تو دینا چاہیے. دیکھیں طلعت صاحب، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیس تو یہ بڑا جینون بنایا تھا اور اسی سوچ کے ساتھ بنایا گیا تھا کہ اس میں سزا ہوگی، اور سزا تو ہو بھی گئی. لیکن دیکھیں جب ہائی کورٹ کی میں اپیل آئی تو اس میں بہت ساری جو قانونی سکم تھے، جو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کو جو یہ بریت ملی ہے، میں یہ کہوں گا کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ملی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیس بالکل نہیں تھا. اس میں سب سے بڑا سکم یہی تھا کہ وہ جو سائفر تھا اوریجنل، اس کو ریکارڈ پہ نہیں رکھا گیا، اس کو
फॉर कोर्ट आइज ओनली पेश करना चाहिए था प्रोसिक्यूशन को, और प्रोसिक्यूशन की ये जिम्मेदारी थी कि वो जब ये केस बन रहा था तो वो एडवाइस करते कि हम अगर इस केस में सजा दिला के और सुप्रीम कोर्ट तक इस सजा को बरकरार रखवाना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट हमें रिकॉर्ड पे लाना जरूरी है। देखिए ये जो केस बनाता है ये उन्हीं की जिम्मेदारी होती है ना, ये और तो किसी का कोई काम नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो, मुझे याद है कि मैंने और अवैस यूसुफजई ने उस वक्त ये बात अपने वीलॉग्स में की थी कि अगर ये साइफर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया तो इमरान खान की एक्विटल हो जाएगी और ये केस उड़ जाएगा। मुझे नहीं समझ आई कि हुकूमत वक्त ने या प्रोसिक्यूशन क्यों इस केस को जो है बात जरूरी आनी चाहिए कि एक तो इसका मुकदमा दर्ज होने में ताखीर हो, वो भी बरीत की ग्राउंड बन जाती है, तो 6 महीने की ताखीर। फिर साइफर प्रॉपर्टी होती है जो इसके कब्जे में होता है वजारत खारजा है, कंप्लेनर बनती है वजारत दाखिला। तो इस पे भी कोर्ट ने सवाल उठाए थे कि भाई जिसकी चीज है उसको शिकायत ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं, वो कह ही नहीं रहे कि हमसे गुम हुआ है, वजारत दाखिला कह रही है जी साइफर वजारत खारजा का गायब है। अच्छा, वैसे जो इसका मतन छपा था जो इनफॉर्मल है, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे मेरे वो खदशात दूर हो गए जिस तासुर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उसका चूंकि डिनायल नहीं आया कि ये दुरुस्त नहीं है, तो मेरा मफरूज़ा ये है जो वर्किंग असम्पशंस हम सारे साफ़ी बनाते हैं कि ये दुरुस्त ही होगा क्योंकि इसका डिनायल नहीं आया। उसके अंदर ये तासुर साजिश वाला जो है वो ज़ाइल हो गया। और फिर जो डिपोज किया गया मुख्तलिफ गवाहान की तरफ से, उसके अंदर भी हमने देखा कि साजिश का लफ्ज़ उन्होंने नहीं निकाला। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर से जो एलामिया निकला तो वो कि जी इसको हटा दो। और फिर इमरान का बयान ये नहीं था कि उन्होंने नहीं कहा, इमरान का बयान ये था कि उसके बाद उन्होंने फंडिंग की, उसके बाद उन्होंने जो पाकिस्तान के इदारे उनके साथ मिलकर साजिश की, उन्होंने बंदे खरीदे, उन्होंने मुझे निकलवाने। सो देयर वाज अ होल नेटवर्क दैट इमरान क्रिएटेड। अच्छा, 26 मार्च की स्पीच थी इमरान खान की यहाँ परेड ग्राउंड में। जी जी, मैं वहीं पे था, मेरे एक तो घर के साथ बिल्कुल स्पीच हुई, ना भी होता उसमें उन्होंने कागज लहराया और बात की। अब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने ये कहा कि वो जो अल्फाज थे वो साइफर के थे, तो उन्होंने कहा भाई ये साइफर के ये अल्फाज अगर थे, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पे लगता है, तो आपने कोर्ट को दिखा देने थे। अब कोर्ट कैसे अज्यूम कर सकती है? सर इसमें मैं आपको एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हवा में, मतलब कि इसमें जो नुकता था वो ये था कि इसको ट्विस्ट किया, जो उनका वो था। तो कोर्ट ने कहा था कि अगर ट्विस्ट किया तो उसके लिए ये ओरिजिनल सामने होना जानना जरूरी है कि ये ट्विस्टेड कौन से वाला है। और जो बात आजकल वैसे कोर्ट से हटके मैं करूं मुदाखलत की, तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा ख्वाहिश किसी की है ना कि अगर हमारे मुल्क में मुदाखलत हो तो वो सॉरी टू से इमरान खान और उनकी पार्टी चाह रही है कि किसी तरीके मुदाखलत हो। और ये क्लियर है कि हम चाहते हैं मुदाखलत हो, लेकिन वो मेरे हक में होनी चाहिए, मेरे अगेंस्ट। ये साइफर ये बड़ी बिटर रियलिटी है। साइफर अदालतों में भी जो मुदाखलत हुई, साइफर केस का फैसला 8 फरवरी से पहले ही आना है, तोशा खाना का भी पहले ही आना है, इद्दत वाला भी पहले ही आना है। फिर उसको जो अपोजिशन थी राना सनाउल्लाह भी कहते थे आपने मुदाखलत की बात करके साकिब को छेड़ दिया। मुझे अगले केस पे जाना है यार, बड़े केस हैं साकिब साहब। वैसे ये वैसी ही मुदाखलत है, ये भी वैसी बात है कि ये भी मेरे हक में हो तो अच्छी, वरना नवाज शरीफ के केसेस में मैंने देखा है तब भी मुदाखलत अच्छी हो रही थी, वो मैं वैसे बात कर रहा हूं। तोशा खाना पे मेरा ज़ाती ख्याल था कि साइफर बहुत तगड़ा केस है, क्योंकि बाकी उसके अंदर ब्रीच थी, टेक्निकल हो या नहीं हो, लेकिन वो साबित नहीं कर। तोशा खाना आई ऑल्सो थॉट के काफी स्ट्रॉन्ग केस है, उसके अंदर शवाहिद काफी रहे। तो तोशा खाना पे लेट मी स्टार्ट विद यू। तोशा खाना जब शुरू हुआ उस वक्त क्या था, और फिर जिस तरह एवॉल्व किया उसके अंदर आपको कहां पर बल फिर नजर आए? गो अहेड। देखिए तलत साहब, तोशा खाना के ना 3 केस बनाए गए। तो इसमें एक ग्राउंड तो जो डिफेंस वाले लेते हैं वो यही लेते हैं कि अगर तोशा खाना का केस बनाना था तो कोई एक केस बनाना था, ये बार बार केसेस क्यों बनाए गए? पहले इलेक्शन कमीशन ने एक फौजदारी इस्तगासा दायर किया, उसमें सजा दिलवाई, उसके बाद नैब का एक केस दायर किया, और फिर एक और तोशा खाना 2 केस दायर किया। तो अभी सिचुएशन ये है कि जो तोशा खाना 1 केस है उसमें सजा तो हो चुकी है, लेकिन वो सजा मुअत्तल है, और उसकी अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। लेकिन नैब जो है वो खुद जाके हाई कोर्ट में ये कह चुका है, एतराफ कर चुका है कि इस फैसले में जिसमें सजा हुई है बहुत ही कानूनी सुकम है और वो उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि आप इसको रिमांड बैक कर दें ताकि जो गलतियां हुई हैं वो दुरुस्त की जाएं। लेकिन इस पे जो बानी पीटीआई के वकील हैं उनका ये मौकिफ है कि अगर कोर्ट ने कोई गलतियां की हैं तो उसका फायदा तो एक्यूज को जाना चाहिए या कन्विक्टेड को जाना चाहिए। तो ये बेसिकली तो क्या गलतियां हुई इसके जरा सबसे बड़ी गलती तो वही हुई है जो हम सब ने उस टाइम देखा कि एक स्पीड लगी हुई थी इलेक्शन से पहले, और उसमें उनका जो क्रॉस एग्जामिन का राइट था छीन लिया गया,
वो उनको नहीं दिया गया, उनको मुकला को, जो कि उनका हक बनता था, उनका राइट था, उनको दे दिया जाता। तो इसमें मसला क्या था, कबाहत क्या थी? वो तो वैसे भी जेल में बैठे हुए थे। अब मेरी क्योंकि प्रोसिक्यूशन से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि भाई आप इनका राइट दे दें, लेकिन अब जो है जो विक्टिम है वो कहता है भाई इनको राइट क्यों दें? और बात भी ठीक कर रहे हैं कि जब मैं वहां से एक सजा भुगत के आ चुका हूं, जिस फॉरम पे मुझे जिसका फायदा मिलना चाहिए टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, तो वो मुझे मिलना चाहिए। इस केस के भी देखिए दो पहलू तो हैं, एक कानूनी है और एक इखलाकी है। इखलाकी तौर पे तो शायद इमरान खान साहब उस पर स्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि माजी में बड़े बड़े दावे किया करते थे। आपको याद होगा यूसुफ रजा गिलानी साहब की वाइफ को वो हार से लेके और न जाने कौन कौन सी बातें करते थे। इस ग्राउंड पे रहे तो यहाँ पे तो वो जो है, लेकिन कानूनी तौर पे ये सुकम है, इसका उन्हें यकीनन फायदा मिलेगा। टेक्निकल ग्राउंड्स भी तो थे इसके, देखे ना, टेक्निकल एतबार से उन गिफ्ट्स को आपने कैसे डिक्लेयर करना है, उनको आपने डिपॉजिट कहाँ पर करना है, उनकी पेमेंट आपने किस अंदाज से करनी है और उनकी वैल्यूएशन किस तरीके से करवानी है। यू कुड से कि जी आप किन बातों में पड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, यू कुड मेक दैट आर्गूमेंट। लेकिन आई थॉट कि चूंकि इसके अंदर टेक्निकल और प्रोसीजरल वायलेशन बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आई, बाद नज़र में मुझे नज़र आई, पता नहीं साबित हो सकती है नहीं, तो आई थॉट तगड़ा केस था। लेकिन मैं तोशा खाना के जो नैब के दोनों केसेस है ना, उनकी इन्वेस्टिगेशन फाइल पे रहना चाहूंगा, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में एक चीज़ें हमें कॉमन मिलती हैं, और इससे पहले कि हम कोर्ट की टेक्निकल जो फॉल्ट से वहाँ पर हुक्म रहे उस पर जाएं, प्रोसिक्यूशन की जो अपनी फाइल में चीज़ें हैं ना, वो बड़ी हैरान कुन है। उसमें वो ये तो कहते हैं कि जनाब तोहफे की कीमत कम लगाई गई और फिर उसकी अदायगी की गई। अदायगी से वो इनकार नहीं कह रहे, वो कहते हैं जी कीमत इतनी नहीं बननी थी, कम लगाई। कम किसने लगाई? दो सरकारी अफसरान ने। कीमत कम लगाने वालों को एक्यूज ही नहीं बनाया, ना वादा माफ गवाह बनाया, ठीक, उनको उसमें लिया ही नहीं। तो ये पहला फेलियर हो जाता है प्रोसिक्यूशन साइड पे। वो फाइल खुद सजेस्ट कर रही है कि हमने केस गलत बनाया है, ठीक। फिर अगली बात पे वो चले गए कि अच्छा कम कीमत लगाई, तो असल कीमत क्या है? नैब का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लिखता है अपनी रिपोर्ट में कि हमने जी इस तोहफे की कीमत लगाने के लिए मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रब्ता किया, उन्होंने कहा हम नहीं लगा सकते। हमने FBI से रब्ता किया, उन्होंने कहा हम नहीं लगा सकते। हमने पाकिस्तान के हर मुतलका इदारे से, इंडस्ट्री से रब्ता किया, हमने ओपन मार्केट में रब्ता किया, सब ने कहा जी हमें नहीं पता कितना है। हमने मुतलका कंपनी से रब्ता किया, उसने कहा जी कि ये तो हम आपको बताने के वो पाबंद नहीं है। तो फिर हमने क्या कहा? हमारे पास सिर्फ तोहफे की तस्वीर थी, असल हमने लिया भी नहीं, कन्फिस्केट भी नहीं किया, और हमने वो पिक्चर भेजी एक दुबई में बंदे को, तो उसने कहा जी नहीं नहीं इसकी कीमत तो 3 अरब रुपए बनती थी। असल कंपनी भी नहीं बता रही, पाकिस्तान में हर इदारा इनकार कर रहा है। जिन्होंने उसकी कम कीमत लगाई उनको हमने मुल्ज़िम भी नहीं बनाया। बस एक दो तोहफे ऐसे हैं कि जिनकी मालियत को कैलकुलेट करने के लिए पाकिस्तान में कैलकुलेटर नहीं बने हुए हकीकत में, क्योंकि वो एक ही मरतबा बनाए गए, 2 बनाए गए। लेकिन आप आम तोहफ की भी बात कर रहे हैं ना, आपको साबित करना होगा कि अगर ये कम है तो असल कीमत क्या है, असल कीमत आपने लगवाई। तला साहब, मैं एक चीज जो है ना, नैब को मैं चूंकि कवर करता रहा हूँ काफी सालों से, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पढ़ना वैसे मेरी ये समझ रहे हैं आपके मशगला है। एक चीज मैंने बड़ी कॉमन देखी है, अपनी जान छुड़ाने के लिए इन्वेस्टिगेशन अफसरान इतनी तेजी में इतनी मतलब फर्जी कहानी गढ़ते हैं ना, कि उन्होंने अगर मुझे किसी ने कहना इसके खिलाफ केस बनाओ, तो वो कहेंगे जी कि ये 10 साल पहले इस्लामाबाद में आया तो इसके पास मोटरसाइकिल थी, अब ये गाड़ी पे फिरता है और इस दौरान इसके 4 बैंक अकाउंट्स खुले, और ये कहानी बन जाएगी। ये नहीं बताएंगे 4 इदारों में काम किया, 4 इदारों ने कहानी बनाते हैं, केस नहीं बनाते। That's what you're saying. That's a very interesting take. ये हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर आइस का और पता नहीं वो किसका बना दिया। हाँ, वो असल में इशू ये है कि कहानी फारक थी। असल में वो पॉलिटिकल केसेस जो है वो पॉलिटिकल अंदाज में ही बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें कोई जान थी या नहीं थी? इसमें जान तो थी या नहीं थी, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील आ चुकी है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं, 1 करोड़ 80 लाख रुपया कीमत लगी थी, एक्चुअली 90 लाख इन्होंने दिया था, जिससे ये इन्होंने तोहफा अपने पास रखा। तोहफा बेच के दिया था ना? जी बेच के दिया या जिस तरह भी दिया, नहीं इस तरह दिया, तोहफा बेच के दिया। तोहफा बेचना ऑफेंस नहीं है, तोहफा बेच के खरीदने से पहले तोहफा बेचना ऑफेंस है। नहीं, वो भी तोहफा लेने से पहले तोहफा बेचना। इसमें जो नैब ने कीमत लगाई वो तस्वीर के जरिए लगाई, ठीक है, वो जिस तरह ने बताया। जी इसमें हुआ क्या कि 31 जनवरी को सजा हुई और 1 अप्रैल को जब बेल का मामला आया तो उस वक्त नैब ने कहा जी हमें कोई इतराज नहीं, इनकी जमानत दे दें। 14 साल की जमानत में कभी भी ऐसा नहीं होता, 2 साल या 3 साल की जमानत में इस किस्म की
सजा में जाती है। फिर जो जज साहब ने जो फैसला दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जज मोहम्मद बशीर साहब के आखिरी समझें कि 10 दिन रह गए थे, उन्होंने छुट्टी अप्लाई की, छुट्टी उनको नहीं मिली, उनको कहा कि नहीं आपने ये केस करना है। रात 12 बजे बल्कि एक दिन 1:30 बजे तक रात वो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, और बगैर 342 बगैर कुछ किए 31 जनवरी को उन्होंने फैसला दे दिया जिसको कोई जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहा। और अब जो है वो नैब ने एक और केस बनाया कि वो तो पहला केस तो ठीक चल नहीं सका, अब तोशा खाना 2 बना लिया। अब तोशा खाना के 3 मजबूरी तौर पर केसेस है, एक इलेक्शन कमीशन ने और एक नैब और एक FIA ने बनाया। तो ये भी एक चीज अलग से अक्यूज को फेवर करती है कि आपने एक ही मामले में 3 केस बना दिए।